हेलो देसी रेसलिंग फैंस, मैं हूं ईशान रेसलिंग और मैं लेकर आया हूं एक खास एपिसोड। क्योंकि ये खास एपिसोड में मैं और चेतन बातें नहीं करने वाले। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा अब क्लोज एंड पर्सनल एक ऐसे रेसलर से जिसने भारत का नाम रोशन किया है अमेरिका में। जी हाँ, ही इज द प्रो रेसलर्स रेसलर, ही इज द पंजाबी लायन। प्लीज वेलकम जोरा जोल। सत श्री अकाल भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। सत श्री अकाल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत प्यारे सारे भारतवासी इंडिया के फैन के साथ सन्मुख करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बहुत टाइम से मैं आपको लाना चाहता था इस प्लेटफॉर्म पे और मैं बातें करना चाहता था कई, क्योंकि राइट। हमने बस देखा है कि यहाँ पे इंडिया में बैठ के हम देखते हैं और टाइमिंग पे देखते हैं। एक तो रेसलिंग बहुत ही हम्म। अजीब टाइम्स पे आती है यहाँ पे, सुबह सुबह अर्ली राइट। मॉर्निंग। पर अनबिलीवेबल, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु वेक अप इन द मॉर्निंग एंड वॉच रेसलिंग। सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, चंडीगढ़ से यूएस तक ये कैसे हुआ? सो ईशान, दिस इज ये जो जर्नी है ना, ये जो स्टोरी है, आई आई एम ग्लैड यू आंसर्ड इन अ रियली गुड वे। ये मैं बताना भी चाहता हूँ कि बहुत लोगों को, बिकॉज I grew up. I was born in a village in a very small town. जैसे तुम्हें you can understand कि हमारे villages कैसे होते हैं, है ना? कि एब्सोल्युटली। when you go to Punjab, and I'm talking about year like I that was like in late 90s, year 2000. जैसे जिसको like when I try to tell unfavorable conditions here to somebody, it's really hard to tell that because you can't put that in words. Yep. So I was born in that type of atmosphere. So if you ask me in year 2000, जब मैं शामली मेरा पिंड है कुराली के पास चंडीगढ़ से roughly about 35 kilometers. So if you ask me in year 2000, my dream was to like get a job. My struggle was कि मेरे like I want to find a job, graduate and find a job. And maybe one day when I have a decent job, when I'm able to afford a ticket to watch pro wrestling, maybe I'll watch it one day. That was me in year 2000 in Punjab. So so this whole journey, when I think of that time and now, it blows my mind to even just think about it कि कैसे है ना, कि कैसे होता है। पर on at the same time, उस टाइम सोचा नहीं था कि ऐसे होगा। स्ट्रगल फूड के लिए, स्ट्रगल जॉब के लिए, स्ट्रगल थी जो इन चीजों के लिए चल रही थी। तो बेसिकली लाइक आई जस्ट थॉट ऑफ लाइक कि देखेंगे क्या होगा। ओके, दिस इज द थिंग, लाइक obviously becoming a pro wrestler, that was nowhere कि कहीं नहीं था। फैन, यस, लाइक आई वाज अ बिग फैन ऑफ द रॉक। बट देन पढ़ाई करते रहे ना आगे की, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। एंड आई वाज अ सॉकर प्लेयर, आई यूज्ड टू प्ले सॉकर। I Oh, played for nice. Rope. Yeah, I played for Roped district, which is our And then when I moved to Chandigarh in 2003 or four, and I played for Chandigarh too for a couple of years. And then I competed for bodybuilding. I was Mr. Chandigarh in 2011. Yes. So yeah, throughout the process, I'm being an athlete. I'm going to school. I got to अपनी engineering school में. I went to CGC, Chandigarh Engineering, CEC, Chandigarh Wow. Engineering College to get my BE, BTech की वहाँ से. And meanwhile, I'm competing in bodybuilding competitions and physique competitions and playing soccer. जो भी मतलब मेरा चल रहा है साथ साथ. Ye- So 2011, I competed I was Mr. Chandigarh Senior Champion, and then I competed in Mr. India, came to New Delhi, competed वहाँ पे. तो फिर उसके बाद in 2012, फिर I applied for grad school here in the United States. So 2012 में मेरी admission हो जाती है, तो फिर I come move to University of Iowa for my Masters of Computer Science degree. So oh, then, even in this process, I am not sure. My dream is still, maybe I'm gonna get a really good job and I'll go watch pro wrestling live. I will watch one of those guys. Who I grew up watching. But I still don't know. Even so, I made a move. I started my school here.
in Iowa. So I get my degree. I actually watched a live event. It was in Des Moines. I remember that. And that night, I'm like, okay, this was the dream. Like, कि ये तो हो गया कि मैंने देख लिया कि एक स्मैकडाउन लाइव इवेंट देखा कि यार ये तो कुछ नहीं था. And then I'm like, maybe I was thinking too low. Like my bar was too low. Then I'm like, you know what? I'm gonna graduate. And I was on student visa, so that's the other thing we have to go through. There's a lot. Yes, yes, yes. There's other hustle that's going on with Joe, so people can't even imagine. So You're and hanging in the then balance because you need to find a job afterwards. right. So I have to graduate first, and at that point, but I was in a really good situation. At least I was in the United States. At least I'm going to school. At least I have hope. So now at this stage, few years ago, I had no idea like what I'm gonna do. But then that's when I decide, okay, I am gonna be pro wrestler. So I wait for my graduation. That actually gave me a little bit push too. Okay, I gotta work more hard, even harder. So I graduated in 2014, and even before I graduated, I had a job lined up in Boston. So as a software QA engineer. So I moved from Iowa to Boston for that job, and in 2014, I slowly settled. I get my student visa transferred to work visa. Then I'm like, all right, at least now I can focus on this. That's when I start training to become a pro wrestler. तो तब वो शुरू होता है. So then I start training, and 5-6-7 महीने बाद I was already in a good shape. Like मैं पिछले 10-12 साल से I've been in this shape. Like 10 pound ऊपर 5 pound नीचे, like in the same physique, because I've been training my whole life from soccer खेलते हुए, and then physique bodybuilding, and I never quit training and this lifestyle of eating right and working hard and whatnot. So 2015 May I start training, and 16 May I had my first match यहाँ indies पे local. That's quite a journey, I think. And सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा सबको जो देखेंगे कि इस पूरी जर्नी में आपने कहीं भी आपके एजुकेशन को नहीं छोड़ा, बिकॉज यू बिल्कुल नो नहीं. कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है. दिस इज माय फाउंडेशन. इफ आई डोंट बिल्ड my foundation with education, going from engineering Right. to professional wrestling, it might seem Yes. like crazy, but I think that really shows कि आपको कुछ पाने के लिए पहले आपको खुद एक फाउंडेशन बनानी पड़ती है. एंड दैट्स अ Yes. ग्रेट Right. एग्जांपल दैट यू सेट. साथ ही साथ यू टॉक्ड अबाउट हाउ इट वाज अ वेरी यू पुश्ड योरसेल्फ. आपने अपने आप को मोटिवेट किया कि पढ़ाई करनी है क्योंकि आई हैव मोर टू लूज इफ आई डोंट मेक इट. Right. तो जब आप यहाँ पहली बार आए तो cultural difference must be so drastic. So how did you adapt with it, early, like considering that you had a physique also? So how did you go with the diet and everything, क्योंकि पूरा change होगा ना. Right. No, एक change नहीं, बहुत changes होते हैं. Like you said, कि it's just not one change, especially coming from the other part of the world. Um, our language is different. The way we think is different. The stuff we eat, our food is different. The way we were raised is different. So everything is different. And then I came by myself. Like I don't have any relative here. I have nobody here. I literally felt like I remember those first days when I moved to Iowa. I felt like somebody picked me up and just throw me somewhere where I don't know anybody. Absolutely. But that one year, the first year taught me one thing: ki never be afraid of being like in uncomfortable positions. I was uncomfortable. I wanted to go back home. I wanted to quit school and go back home. It was that जेड़ा ये पहला साल जो पहला year था. So that taught me that okay, you have to put yourself in uncomfortable situations no matter what. Even starting pro wrestling too. I I was literally 2 years. That was 2014 when I was 2 year in this country. Yep. In this country, and then us time I felt the same thing. I'm like, wow, I don't know kaise hoga. Maybe like competing in physique or something.
that's easier for me, maybe, you know, because I'm already in that. So there were so many things that were eating me from inside, like, okay, should I do it? I don't know anybody. I still don't know a lot of people in business. I still I still feel like I push myself single-handedly to do whatever I'm doing today, you know. Which is okay. I love that. You know, I've fallen in love with this special a specific mindset a while ago, and I'm still loving it. But going back to the same situation, yeah, you know, even starting pro wrestling, you know, I was called in as an extra even when I was not training. So that kind of gave me an idea. Okay, I'm not even training to be a pro wrestler. The other company called me for to be an extra in Albany, New York, and then I talked to a few people. They're like, "Oh, you're already in a great shape, so why don't you just start training?" Yeah, absolutely. Somebody You told me look the that, and part. yeah, so right away I started. I come back and I found school where New England Pro Wrestling Academy here in Massachusetts where I live, and I see, you know, Sasha was trained there, and then right away it clicks me, you know, and then I come here, sign up for lifetime membership. I'm like, just sign me up. There is no going back. There is no brown kid around on the independent scene, Yep. you know, and I'm like, no, there is no going back. I'm just into it, you know. And yeah, so that was it. That was a little bit uncomfortable for a while because like you said, you know, बहुत अलग होता है वहां जाना भी. कोई बंदा अपने जैसा नहीं है. कोई एटमॉस्फेयर भी थोड़ा अजीब होता है जो Right. जो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि फिर वो उसको चीज को देखना उसमें उसको अडेप्ट करना उसको अपना ही समझना कि ओके यही अपना अब एटमॉस्फेयर है because there is no going back. We have to, like, you know, just keep going. So that's how it starts. I think this is something that the people in India will definitely look closely क्योंकि अभी इंडिया में भी they're starting to make waves. I've seen that there are some regional promotions in India, in South India, in North India. There Right, are 2 3 promotions. So it's got so much better accessibility in India is better. But you went there at a right. time when there was nothing per se like this in India. But what was the moment like, when you were wrestling on the independent circuit? Was there any time जब आपको ऐसा लगा that, oh my god, I'm hurting myself, I shouldn't do this? Because people think that kayfabe is, nothing, they just decide things and stuff like that, but wrestlers do get injured. They put you like, I can't do it, you can do it, right? So ऐसा कभी लगा आपको कि, oh my god, नहीं ऐसा. what did I get into? I don't think this mindset will get you anywhere. Like, that's how I feel like it. So the physical pain started when, obviously, like, I started wrestling and all that stuff, right? You go through all this stuff, but you need to understand, for me, like, the mental stuff started a while ago, which is the hardest part. Physical pain, I can bear it all day, like, you know. The biggest thing is like the mindset part, you know, Yep. that you have to. There's so many things, like, you know, like I said, starting from the village to till today, even till today, there's so many things you go through mentally. You know, those are the things that made me kind of, like, you know, tough enough to not even consider these things as a pain. It's okay. It comes. There is nothing you can achieve without these small, like, you know, pains. So physical pain, I never thought about कि मुझे इससे problem है या कुछ और या फिर going back. No, 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 never. Like, even today, like, I never think कि ये तो दिमाग में भी नहीं बात आ सकती कि पीछे मुड़ना है कि इन छोटी चीजों की वजह से. ये छोटी चीजें ही हैं, इनको कभी मैंने बड़ा सोचा ही नहीं है. Especially physical pain. एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, जैसे बचपन में हम गिर के पढ़ के ही उठ के सीखते हैं, फिर से वो नई Exactly. चीज होती. तो आई थिंक दैट्स exactly what is the case with you and professional wrestling, which is so beautiful to see. And we talked about your physique, you were into bodybuilding, so I have to ask you, like, you to have a very good physique for, like, we know it, right? But who in AEW do you think has like that jaw-dropping physique? Like, oh my god, this guy is ripped or jacked, whatever you call it. Wardlow has really good physique. I think he's in, like, good proportion. सब सही, like, एक ये बड़ी होता है कि फिजिक में ना, एक ये होता है कि proportion में दिखना, है ना.
So वो कोई कोई होता है ना कि जो होता है, आई थिंक वार्डलो का मैं बोलूंगा कि आई लाइक्ड हिम, आई हैव सीन हिम कि physique wise, you know, working towards it and how he has achieved all that stuff. So he's the one I would say. और भी हैं That's जो a मेरे great शायद choice. दिमाग, या और भी हैं Actually, शायद मेरे दिमाग। मैं जब सिंगलेट में रेसलर्स को देखता हूँ, आई कैन इमेजिन दीज हाँ, ग्रैपलर्स एंड स्टफ लाइक दैट। उसके बाद में आप इमेजिन करो वॉर्डलो को एक सिंगलेट में, वो रिप्ड बंदा, वो दैट्स अ वेरी यूनिक अटायर ऑन सच अ बिग मैन, है ना? right, yeah, yeah. वरना I इट्स सो like him in कॉमन, that, yeah. you wear trunks and come out, but Wardlow's got some different attire out there. तो पोस्ट बैटल आप दोनों का Yeah. हो सकता है कभी? We'll see. पर I think जब पहले दिनों से अब तक, I think he उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत आई है। Like हो सकता है कि देखने वालों को बहुत ज्यादा ना पता लगे, पर अगर आप पहले लिटरली 1.5-2 साल पहले से अब देखेंगे तो उसने बहुत अच्छे से अपने आप को इन अ गुड वे ट्रांसफॉर्म किया, और दैट्स अमेजिंग। आई थिंक नाउ, आई मीन इट बिकेम हिज थिंग, लाइक यू नो सिंगलेट इज, it became his thing. It works perfect for him. Absolutely. And what works perfect for you is we saw that you had a brief run with the Hardy family office. We got some really fun moments earlier. So I liked the little bits where first Matt was trying to get you in. You know, Right, right. all of that was going on. So this is like, as a fan, I liked it because, hi, yaar, Matt Hardy, he's got an Indian guy out there, and Matt wants this Indian to come here. This Indian guy isn't going to Matt. तो इज्जत के हिसाब से भी भाई, हाँ, ये वट है, that was nice. So I want to ask, how was Hardy family office working with a legend like Matt Hardy, with Jeff Hardy very Right. briefly? How was it like? It's great. Matt is amazing. I've learned a lot from him. I still, whenever जब भी कुछ होता है, I talk to him and I ask him. And he, उसका एक ऐसा है कि like he's not just, he never made me feel like like you know that we work together. He made me felt like जैसे a coach, a mentor, या फिर एक जैसे घर में कोई बड़ा होता है कि you know he'll guide you. Uh, oh, okay, let's do this way. You know, he's always that person. So that makes your work atmosphere बहुत easy हो जाता है। वो ऐसे लगता है कि okay, you know, he's one of us. He's just senior who can actually, you know, hold your arm and guide you through. So I'm very thankful. बहुत मुझे इस बात से मैं इस बात का शुक्रगुजार भी हूँ कि you know कि मैट के साथ काम करने को मिला. We might work still again. You know, we're in the same company. You know, right now we're not. It's the whole Hardy family office. It's not. You know, it's टूट गया सारा program ये. But yeah, we'll see. I would love to again. Again, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि you know कि I'm lucky enough कि हम सबको इकट्ठा. बाकी as a group, बहुत different different तरह की personalities थी, different styles थे, and Halco completely different style. So it's वो अच्छी vibe थी. I feel like so far that was the best moment. Like I was new, I mean I'm still new, but but like I was learning a lot of new things from that group, you know. Okay, you know, and the private party, they are my buddies, you know, अच्छे दोस्त बन गए थे हम साथ ही. So even after show, hang out karna, we'll go dinner and all that stuff, and then we'll talk about stuff. अभी भी जब कोई बात होती है तो मैं उनसे बात करता हूँ कि you know यार this match it was just this, you know I didn't like this, या फिर उनसे कोई feedback लूंगा. So it's a good feeling to have somebody like them around. And also like जैसे मैंने बताया कि शुरू से मैं single handedly ही रहा हूँ, क्योंकि नहीं होता ये कि जब तुम ऐसे यहाँ से मूव वहां से मूव होके ऐसे आते हो Right. तो तुम्हें नहीं मिलते जल्दी जल्दी. तो अब जैसे then all of a sudden these guys अब ये मिले हैं तो ये बताते हैं, इनसे बात शेयर होती है, विचार होते हैं आपस में, तो वो सीखने को बहुत कुछ मिलता है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग जो ग्रुप की ये रही है, जो अभी तक है जो. Absolutely. And काफी versatile superstars. आप जैसे कि you were the muscle. You had Matt Hardy in there with his big money Matt persona. Private Party, as you said, hybrid too. Everyone, like, I think everyone brought a special flavor to the mix, and then they made the biryani. That was it, I feel.
But Right. you worked with Matt Hardy, and AEW, as we Hmm. know, it has got a nice mix of young superstars and established wrestlers, and also a lot of veterans in the form of Mark Henry, Paul Right. White. So did you ever get a chance, except for Matt, to work with these guys closely? नहीं वर्क तो नहीं, बट जैसे बात हो जाती है, पॉल से हो जाती है वो बैक स्टेज, he's he'll tell stories कोई अपनी पुरानी समय की, या फिर कुछ एडवाइस चाहिए हो, तो देर इनका पुराने जितने भी हैं इनकी ये एक अच्छी, स्पेशली जिनका आपको पता है कि नाम पहले से ही है ना, उनका एक बात आपको समझ, मुझे जो समझ आई है कि वो हमेशा उनकी एक इच्छा रहती है कि मैं किसी तरह किसी की हेल्प कर दूं, किसी तरह मैं इसको ये बताऊं, उसको वो बताऊं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओके, दिस इज द रीजन यू, लाइक ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, कि इनमें कोई ऐसा सा फैक्ट्री नहीं है कि किसी की कोई या जेलसी या फिर कुछ ऐसा सा, वो हमेशा स्टेप अप करके आगे आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब विलियम रीगल है ना, कि लास्ट आई जी। रिमेम्बर लास्ट टाइम जब हम मिले थे, so I was I think who did I wrestle that night on our Ken? television? Yeah, Frankie. No, Frankie. Oh, नहीं, उससे पहले Okay. वाला मैं. Frankie, it was me and Frankie. We wrestled, and मैं वापस I was coming back, walking backstage, and मेरे दिमाग में पहली बात थी कि I when I जब मैंने entrance की तो मैंने देखा कि William Regal was sitting there and watching, right? So I come back and then he wasn't there, and then मैंने पहली बात अपने दोस्त से, एक से वहां पे पता नहीं कौन था, पता नहीं, शायद अक्की ही था, शायद अक्की ही था, आई थिंक। सो Okay. अक्की नो, मैं यार, did you think Regal watched my match? He's like, no, I think he left back, like they had something to shoot back there। मैं कहा ओ यार, मैं कहा कि मुझे था कि देख के मुझे थोड़ी फीडबैक दे, है ना। हाँ. So I say that and then I start walking towards the locker room कि मैं चेंज कर लूंगा ना कुछ, and then I saw Regal approaching me, and then Oh, oh, like, oh sir, oh, yeah, I'm like, yes sir, oh I watched your match, and then I had a few things for you। I'm like, देखो like कैसे काम होता है, like it's just, it made me feel like I go back to locker room, I think about it, I'm like, wow, these guys are just amazing, man, like it's just, I wanted him, I didn't say because he was busy while when I made my entrance to the ring, right? But then it happened. He watched it himself and gave me feedback. So this was beautiful. Like I'm बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा इस बात को कि like wow, this is great। काफी अच्छा लगता होगा। मुझे याद है, मैं एक बार इंडिया में यहाँ पे आई वाज अटेंडिंग अ रेसलिंग इवेंट, and I clicked a picture with ring announcer Jeremy Borash. I uploaded a Uh-huh. picture with him, and he had just commented, "Thanks, brothers." I was so elated. I Yeah, can imagine that you are actually getting this advice from the horse's mouth, to say the least. So yeah, बहुत ही ज़्यादा and exciting feeling होती and with होगी. Regal, I've met him few times before AEW too. So in 2017, I had my first tryout with WWE, right? And that's when I had a close interaction with Regal and Matt Bloom and other guys at the Performance Center. And I was told right away they want to give me job, and so uske baad, and I was in touch with a few guys ki हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, and then pandemic happened, Yeah. and then in 2021, no, this is 20, right? 20, yes, 2021 February, मैं 2020 में December में I was in India, Punjab, Oh. so I get a call back, hey, can we do another tryout? I'm like, okay, well, क्योंकि pandemic की वजह से सारा ऊपर नीचे हो गया, and then they were planning to do something, and then I come back, and then I see Regal again at Performance Center. Um, so uske baad, and then that was in February, end of February, and then in March, things worked out with AEW. So, and then after that, I see him after a long time. So मिले हुए थे पहले, पर ऐसे था कि पर मुझे ऐसे था कि क्योंकि वहां भी जब वैसे प्रोमो में उन्होंने फीडबैक दिया या कुछ भी दिया, every single thing he said, that every single thing he said helped me। So मुझे हमेशा ऐसा होता था कि he goes into like जो डिटेल मुझे, जैसे जैसे ये नहीं होता कि आपकी मैं वही नब्ज पकड़ूं जो मुझे पता है कि जहां आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो मुझे वो बिल्कुल. राइट अवे, या राइट अवे वो मुझे वो फीलिंग हुई थी।
So it's great to have all these guys around. या एंड हमको साथ ही साथ पता चल गया कि आपकी ये जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई थी। 2017 से आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। सो Right. एट यू टोल्ड मी दैट AEW gave you a call in March. So what was it like? Who was the one who approached you and you know because Uh, like yeah. So yes. So it was end of March और मेरे exactly नहीं याद है ना कि कौन सा समय था वो, पर so February 2020 last year February में जब ये tryout होता है तो it was me, Satnam was there. we were in the same tryout. So next month ही मुझे QT का मैसेज आता है कि तुम एक डार्क मैच के लिए आ सकते हो। मैं कहा कि श्योर, लाइक कि सो मैं फ्लाई करता हूँ। देन आई डोंट रिमेम्बर द डेट्स एग्जैक्टली बट आई थिंक इट वाज अप्रैल, अप्रैल में था। तो तब जैक्सनविल टेपिंग्स होती थी, हाँ, एक हफ्ता टेपिंग्स होती थी। डेलीज हाँ, तो प्लेस। डेली प्लेस पे। हाँ, तो मैं वहां जाता हूँ तो मेरा पहला मैच होता है ना। तो फिर एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे पता नहीं होता, यूजुअली मुझे था कि एक ही मैच होगा। It's just a, maybe a tryout match. I didn't, मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्राई मैच है या क्या है क्या नहीं है। पर मुझे आइडिया था कि ओके, कि सेंस बन रही है कुछ। बट द थिंग इज कि मैं इतना कुछ देख चुका था पहले से ही कि 2 बार तो मुझे 3 बार इतनी बार देर से मैं 2017 से मैं WWE से ट्राई बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे पहली बार ट्राई आउट के तीसरे दिन मुझे बोल दिया था कि तू भाई तेरे लिए जॉब है, बस रुक, हमने तुझे हायर करना है। पर नहीं हुआ तो मुझे पहले ही पता लग गया था कि कोई पता नहीं है इस बिजनेस का कि कुछ क्या कैसे ट्विस्ट होता है। तो मैं जाऊंगा, राइट। अपना मैच करूंगा और आ जाऊंगा। मैंने पहला मैच किया तो अगले दिन वो एक एवरी डे टेपिंग्स होती हैं, 2 मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन टेपिंग्स होती थी, ऐसे कुछ था। हम्म। तो अगले दिन वो बोले कि भाई तुझे एक और क्यूटी से मैच करना है ना। तो फिर मुझे किसी ने पहले ही उस दिन जेरी लिन था मेरा कोच। तो कोच ने उसी दिन पेंटा वाले मैच में वो मेरा कोच था, तो उसने अगले दिन उसी दिन शाम को बता दिया था कि शायद कि दरवाजा खुल रहा है तेरे लिए, कि कल को शायद तेरा एक और मैच होगा, कि वो उसके बाद तुझे लग जाएगा पता कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर अगले वाह। दिन क्यूटी के साथ मैच था। तो उस मैच के बाद मुझे पहले आइडिया हो ही गया था, क्यूटी ने बता ही दिया था कि या मुझे कि ऐसे ऐसे ये मैच था। और फिर उसके बाद जॉब शुरू हो गई थी राइट अवे। वाह, मतलब ये एक बस ट्राई, एक मैच हुआ और एक मैच के बलबूते पे यू आर लाइक, उन्होंने बोल दिया कि चलो। जेरी लिन भी वन ऑफ द वेटरन्स यस। ऑफ द बिजनेस। ECW के कई मैचेस हमने देखे हैं और हम्म। रिसेंटली वो थोड़ा बहुत जो इन्वॉल्वमेंट था उनका क्रिस जेरिको के साथ, काफी एक्साइटिंग था देखने के लिए। खुद से आंसू आ गई, इतनी खतरनाक खांसी थी। कई बार होता है। मूविंग ऑन, थोड़ा लाइट अप करने वाला हूँ, थोड़ा मूड में। मुझको तो ये हम्म। पूछना है, मतलब हम इंडियंस वी आर फूडीज, है ना। खाना मतलब जिस तरीके का भी हो हम खा लेंगे। रोटियां दे दो, राइस दे दो, चिकन दे दो, कुछ भी दे दो। तो हाँ, आपने जब आप वहां गए, एक तो यू आर ऑलरेडी इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड you had to maintain, plus then you राइट went into pro wrestling training. So how राइट। did you control urges, because you can't eat all the Indian food then? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले से ही ना, पता नहीं यार, it wasn't that hard for me controlling, and because like I said कि जब जब गांव से ही थोड़ा ऊपर जाने लगे, थोड़ा टूर्नामेंट देखने लगे कि यार सब कुछ बड़ा बड़ा इजी नहीं होता हमारे लिए, कि लाइक कि इतना I was, if you go back, look at me, 10वीं क्लास में or around that time, dude, like मैं बिल्कुल हल्का था। लाइक मेरे मेरे ख्याल से 40-45 किलो वजन होगा, you'll see that guy. तो मुझे ये पहले ही एहसास हो गया था कि कि भाई कि कुछ, कि जिस जिस कंडीशंस में हम बोर्न हुए हैं, लाइक कि माता पिता कोई बहुत बड़े वो नहीं है ना, कि नामी बंदे बहुत पैसे वाले नहीं है, रसूख वाले नहीं है। तो इन कंडीशंस को बीट करने के लिए सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। ये तो एक पहले ही मुझे सीख लिया था मैं।
तो जब उसके बाद एक एथलीट था, मैं पहले ही सॉकर खेलता था ना, उसके बाद मैं फिटनेस में आता हूँ, तो मुझे ये आइडिया हो गया था कि फिटनेस की सारी गेम है जो उसमें उसमें लाइक डाइट कंट्रोल का बहुत बड़ा वो है, एक फैक्टर प्ले करता है, कि वही मेन गेम है। ट्रेनिंग राइट। तो एथलीट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, कि ठीक है कर लेंगे, हम उस चीज पे धीरे धीरे वर्क कर लेंगे। तो एक उसमें ये भी होता है कि थोड़ा एजुकेशन उसमें भी इन्वॉल्व होती है, डाइट में भी एजुकेशन इन्वॉल्व होती है, कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, वो सारा मैंने तभी से पढ़ना शुरू कर दिया जब वहां था। तो उसका भी एक दूसरी पढ़ाई जो अपनी कॉलेज वाली थी ना, उसका रिलेशन ऐसे है कि तुम हर एक चीज को पढ़ने बैठ जाते हो तभी। जब हर कोई ये पूछता है हाँ जी कोच की क्या करना है, वो कहेगा अरे 10 अंडे खाने हैं, ये खाना है, तुम उसको भी पढ़ने बैठोगे यार, 10 अंडों में इतना ग्राम प्रोटीन हुआ, इतना ये हुआ, तो वो मुझे उसी टाइम हैबिट पड़ गई थी। तो जब मैं यहाँ मूव होता हूँ, तो पहले 1-2 साल थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पैसे का सब कुछ, स्टूडेंट इंडिया से मूव हुए हैं, तो बहुत ही साधारण परिवार से, अपने मेरे को अभी भी याद है मेरे पिताजी ने $3,000 दिए थे। मैं कहा इसके बाद मैं आपसे एक चवन्नी नहीं लूंगा, कि दिस इज इट, दिस स्टॉप्स हियर। एंड आज तक दिए ही है, लिए नहीं है, यू नो। वाओ, टचवुड यार। तो हाँ, तो मैंने वो उसी टाइम से, सो आके पहले 1-2 साल थोड़ा मुश्किल रहा, तो कुछ भी खाना तब तो। और उसके बाद मैंने जब थोड़ा ठीक हो गया, मेरा टीए लग गया था, मैं एज ए टीचिंग असिस्टेंट जॉब लग गई थी मेरी कॉलेज में ही, तो फिर मैंने बिल्कुल सही कर दिया, सॉकर दोबारा शुरू कर दी, लिफ्टिंग दोबारा शुरू कर दी, और खाने वाला पार्ट है जो, उस पे भी मैंने दोबारा वर्क करना शुरू कर दिया। तो एक चीज मैंने वहां से एक और सिस्टम बड़ा अच्छे से बना लिया, कि 5-6 दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अभी भी मेरा वही है। मैं मंडे टू फ्राइडे कोई चीज नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जो खाना है मुझे वही खाना है। तो सैटरडे अगर मेरा शो है, तो मैं सैटरडे भी थोड़ा क्लीन ही रखूंगा, सैटरडे भी नहीं खाऊंगा। संडे फिलहाल जो मेरा मन कर रहा है, जो पूरे हफ्ते में तुम्हारी क्रेविंग्स है ना कुछ भी, हम्म। तो मान लो लाइक आलू के पराठे खाने हैं, राइट, मान लो तंदूरी अपना तरी वाला चिकन बनाना है, राइट, जो वाओ। पंजाबी स्टाइल, मक्खन मक्खन देसी घी पाके, राइट, आई डू इट सैटरडे संडे, फिर रीच से करूंगा, मैं बनाऊंगा भी खुद मैं। आई वांट दैट, लाइक कि लेके एंड देन आई विल डिस्ट्रॉय इट। सो देन मंडे यू आर बैक टू योर जॉब अगेन। सो बेसिकली ये एक बैलेंस सा बन जाता है। उसके बाद एंड एक और है, फिर यू एंजॉय दैट फूड मोर टू, कि अगर तुम या। संडे एक बार खाओगे, जो भी तुम्हारा मन है, हर हफ्ते यू स्विच इट टू समथिंग एल्स, लाइक एक दो चीजें सुबह भी खा लूंगा पूरा दिन, ऐसे भी नहीं है कि एक ही मील या कुछ, नो, अगर सुबह पराठे खाने हैं, शाम को कुछ और खाना है, तो साग खाना है, मक्की की रोटी खानी है, वो भी लाइक बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस दिन। तो ऐसे बैलेंस किया है, सो दिस इज द ओनली वे दो, और कोई वे राइट। ही नहीं है। बट अगर फिजिक को सही रखने के लिए, इफ यू थिंक देयर इज नो अदर वे, अगर हम रोज खाएंगे अपना वही, फिर तो मुश्किल ही है, फिर नहीं होएगा, है ना। तो बैलेंस एब्सोल्युटली। ही कर और सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आप खुद ही को एक मेंटली बताते हो कि हाँ, गिव योर सेल्फ, मेंटेन डिसिप्लिन, यू विल बी रिवॉर्डेड विद डिलीशियस फूड ऑन संडे। हाँ, संडे सैटरडे जब भी बनता है ना, बीच में भी अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर और एक मैं और बात बताता हूँ, कि जब एक जो मुझे गांव में रहने से एक बड़ी सही बात हुई उस टाइम से, कि एक तो सब कुछ फ्रेश खाना है, कुछ भी प्रोसेस नहीं खाता मैं, भाई वो पहले से आदत ही पड़ गई थी, क्योंकि हम्म। हमारे गांव में यार अदरक लहसुन जो भी खाना है वो घर का है, सब कुछ, दूध दही बराबर। कुछ भी, कोक ठंडा ये वो, ये कभी मुंह ही नहीं लगा। अगर लगा तो लस्सी दूध ये वो, इन चीजों से ही था, और इन चीजों से आज भी इन चीजों से प्यार है। अगर मन करता है, इच्छा करती है, अगर आप मेरे सामने 5 स्टार मील रख दोगे, और मेरी दादी का बना हुआ साग और मक्की की रोटी, वो चूल्हे वाला सिस्टम अगर मुझे याद हाँ हाँ आ हाँ जाता है, हाँ। आई लूज इट राइट अवे। दिस इज, आई कैन अफोर्ड मील एनी, कोई भी 5 स्टार कहीं भी, राइट। राइट। पर उस चीज का मैं उससे भी ज्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि उसी पे हम रेज हुए हैं। सो गाँव में ये चीज हमारी पहले ही ट्रेन हो गई थी, कि जो प्रोसेस्ड खाना है उससे दूर रहो, इवन डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। तो उस चीज ने मुझे बाद में भी हेल्प किया, कि अभी भी ना, तो जैसे मैंने कहा कि ना मैं कोई फालतू मिठा, हमारे मिठा भी शक्कर होती थी करके गन्ने की निकाली हुई, हाँ। राइट। तो दूसरा, आर्टिफिशियल शुगर तो बिल्कुल ही नहीं लेना, है ना। तो फ्रूट्स वेजिटेबल इनसे ही है जो है, और घी घी घू वो भी घर का ही था, मक्खन घर का। तो यही चीजों ने पहले ही ट्रेन कर दिया था थोड़ा बहुत।
मुझे आपको ये पूछना ही था, आपने तो कह दिया कि मीठा फिर भी, बट व्हाट इज योर फेवरेट मिठाई, कि ये यार सामने मुझे दिख गई तो मन थोड़ा सा चंचल हो जाता है। चंचल, मैं बताता हूँ, खीर मुझे बहुत पसंद है। वो भी, उसका भी रीजन यही है कि वो घर की, शुरू से रेज ही ऐसे हुए हैं यार, बहुत सी चीजें तो सेव एक्सपोज ही वाली नहीं हुई खीर, हमारे। है। हाँ हाँ, सेव लाइक वाली सेव सेव वाली, या फिर हाँ, जो उसमें चावल की ड्राई भी फ्रूट बनती है अच्छा एक। सा। चावल की भी बनती है हाँ। तो हमारे चावल की बनती थी। तो हाँ बैक इन द डे हमारे ऐसे होता था कि सुबह उन्होंने रख देना चूल्हे पे, धीमी आंच पे, है ना। वो मेरे ख्याल से 5-7 घंटे वो दूध बन ही रहा है, बस उसमें थोड़ा वो, जैसे आई डोंट नो कैसे पूरा प्रोसेस, तो मुझे भी नहीं पता कैसे बनाते थे घर वाले। हाँ पर वो भाई, वो क्या, उसका वो अलग ही उसका टेस्ट होता था। और दूसरी बात ये थी कि जो दूसरी मिठाई थी ना, जो बहुत ही नॉर्मलाइज है, वो हमें एक्सपोज ही जब शादियां होती थी, या फिर कभी दादाजी के साथ साइकिल पे बैठ के और थोड़ी दूर हमारे कुराली शहर था, वहां गए, तब उन्होंने समोसे खिला दिए। ये चीजों से हम एक्सपोज ही नहीं हुए बचपन हाँ। में। तो मिठाई यही जो घर की होती थी ना हमारे घर पे, मुझे सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट खीर ही थी। तो अभी भी जब मन करता है तो हम खीर ही बनाते हैं यहाँ पे दाल के समान। या फिर रसमलाई आई लाइक अ लॉट, जो बाद में एक्सपोज हुई मेरे से, तो आई लाइक दैट अ लॉट टू। तो कई बार एक और चीज होती है कि जैसे एक यार वहां मिलता था चंडीगढ़, वो और भी बहुत जगह मिलता है, कि वनीला तुम्हारी आइसक्रीम होगी, और साथ में गर्म गर्म ब्राउनी होती है, जो हाँ गर्म चॉकलेट ये वाली, बहुत बहुत वो मस्त भी लगती सही है। आइटम लगती थी हाँ। तो पर ऐसे होता है कि इन चीजों से भी कोई परहेज नहीं है। जिस दिन मन है उस दिन ठोक के खा लेना है, एक की बजाय तब तक खाऊंगा जब तक तसल्ली ना हो जाए। पर एक बार खाऊंगा ना, फिर मुड़ के फिर 5-4 महीने मेरा अपने आप ही नहीं मन करता, अब ऐसे से ही बॉडी ट्रेन हो गई है। राइट। और दूसरी बात है, जो देसी चीजें होती है ना, जैसे खीर है, खीर इतना हार्म नहीं करेगी आपको, उसको जी। उसमें शक्कर ही है जो हार्म थोड़ा करती, मिठा है ना। तो हाँ शुगर को आप अपने हिसाब से थोड़ा डाल लो, ड्राई फ्रूट कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे तुम्हें, है ना। चावल, बिल्कुल। दूध, कोई कुछ कुछ नहीं होता, वो तो सही है चीजें सारी। तो इन चीजों को तो हम एवरी अदर वीक बना ही लेते हैं, खीर खूर तो। बाकी चीजें जब बाहर कभी गए, फिर एक बार जाके तसल्ली कर लो, और उसके बाद 2-4 महीने गुड है काम। मतलब ये आप आपने जितना मुझे वेरिएशन बताया अलग अलग चीजों का, मैं आई कैन से फॉर अ फैक्ट कि आपका चीट डे जो है हर टाइम हर वीक अलग अलग कुछ ना कुछ होता होगा, हाँ, सेम नहीं है कुछ। नहीं नहीं नहीं, इसमें अब और है, जब यहाँ है तो बहुत सी चीजें यहाँ के, मुझे वहां पे सुशी का नहीं पता था। तो नाउ लाइक आई लाइक सुशी लॉट। तो कभी कभी ये होता है कि साल में 2 बार तो ऐसा होता है कि फिर, पर फिर बफे ही टाइप ही चाहिए होता है कुछ। ये है कि भयंकर बड़ा प्लेट ले आओ, और कि एक बार फिर मन खुश कर लो फिर। पर या, अब यहाँ पे और बहुत से मैक्सिकन फूड मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें वहां पे नहीं इतना मिलता था कि मैक्सिकन अच्छा, सही है। मैक्सिकन बहुत टाकोस, ये चीजें यहाँ पे बड़ी सही मिलती हैं। तो फूड की अब तो और ज्यादा वैरायटी ऐड हो गई है भाई। पहले वहां तो छोले कुलचे, छोले भटूरे, है ना, ये वो ही होते थे। अब तो और ऐड होगा। अब दिमाग लगाना पड़ता है कि सिर्फ चीट मील में खाए क्या भाई, अपने वाला खाना खा के इच्छा पूरी करें, या फिर कोई और भी, और भी मैक्सिकन या कोई और। हाँ, लाइफ और हार्ड हो गई है मतलब। चॉइसेस काफी ज्यादा हो गए हैं। और मैं तो मतलब आप तो काफी लकी हो, आपको तो पता ही है इंडिया में सब कुछ इंडियन वर्जन हो जाता है। हाँ चाइनीज भी इंडियन वर्जन, इट्स देसी चाइनीज। तो हाँ ऑथेंटिक अलग अलग जो टेस्ट लेना, आई थिंक वो भी एक अलग बात है। और मजा आता है टेस्ट, अगर फूडी हो आदमी, अगर खाने की चाह रखे तो फिर अलग अलग चीजें ट्राई करने में हर्जी क्या है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो तो होता है है। जब जब किसी भी चीज का मन होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं नहीं रुकता। अगर जैसे लास्ट वीकेंड का बताता हूँ, मैं लास्ट वीकेंड का मन था, वो यहाँ ना एक हमारे शॉप है, वो बड़े सही दही पूरी बनाते हैं। वाह। बस फिर 2-3 प्लेट वो वही गए फिर, शाम को खाने के बाद, खाने के बाद गए, और वो भी खाने से पहले नहीं। अ तो वेरी जो क्यूरियस होता है, क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि मेरे अपने अभी दही पूरी की बात, दही पूरी वहां पे कितने डॉलर की है, मतलब आई वांट टू कन्वर्ट इन रुपीज एंड यार यहाँ पे है एक शॉप हमारे ऑनेस्ट करके, हाँ वहां पे मेरे ख्याल से
$8 के देते हैं वो एक प्लेट। आठ नौ, आठ नौ के या डॉलर आठ, नौ नौ, नौ के होंगे मेरे ख्याल से, 8 9। मतलब 720 रुपए के। तो उसमें हाँ 5 6 6 7 होते हैं। वाह, देखो दोस्तों, अभी इंडिया में यहाँ पे 40-50 रुपए हैं, आप भैया जी से झगड़ा कर रहे हो इतना महंगा क्यों कर दिया, वहां पे देखो 720 रुपए का आ रहा है प्लेट। अरे नहीं, इसी रीजन की वजह से जब मैं जाता हूँ तो मैं दिल खोल के टिप देता हूँ भाई। लाइक जैसे मेरे एक दो बंदे ना पक्के हैं, 8 सेक्टर चंडीगढ़ एक बंदा है जो पक्का ही, उसको मैं बोलता हूँ कि भाई चिकन में कम मैरिनेशन लगाया अगर मेरे लिए ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ अपने तंदूरी चिकन में भी पूरा ठोक के लगाते हैं और दिल बटर नहीं खोल के। लगाना बाद में, है ना, सिंपल। तो उनको मैं सभी को फिर अच्छे से ही देता हूँ। अगर अगर मान लो 500 हुआ तो फिर 700 800 इजी पकड़ा के आऊंगा कि ठीक है इतना, हर एवरी डे और हर रोज का ही था काम। क्योंकि महसूस होता है कि यार नहीं यार कि बहुत ही अंडर अंडर पे होते हैं हमारे बंदे वहां पे, स्पेशली यहाँ से जाके। अब जब जब यहाँ देखते हैं और वहां देखते हैं ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, या हर चीज में काफी ड्रास्टिक डिफरेंस है। और हाँ। अभी डिफरेंस की बात की है तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं गियर, थोड़े एक सेंसिटिव इशू पे आ जाते हैं। अ, मुझे बात करनी है सिद्धू मूसेवाला के बारे में। उनका जो हम्म। लेगेसी रही है, इन अंडर जस्ट अंडर 30 years of age, he not only created a fan following, but he, you know, opened a lot of people's eyes with his music. राइट। वो बस रैंडम लिरिक्स नहीं थे और ऑटो ट्यून वो सीन नहीं था, इट वाज जेन्युइन लिरिक्स हर एक गाने में। तो आपने, मैंने आपके फोटोज और वीडियोस देखे हैं, उनके साथ आपने हैंग आउट किया है वहां पे यूएस वगैरह में। तो हाउ वाज योर टाइम विथ हिम इन पर्सन, कैसे थे सिद्धू? ही वाज अमेजिंग आई थिंक। कि सिद्धू की पर्सनालिटी जो है, जो हम गानों में या फिर ऑन स्क्रीन देखते हैं, वो उसकी रियल पर्सनालिटी से आई डोंट थिंक कि 1% भी मैच करती है। ही वाज वेरी काइंड सोल, ही वाज वेरी काइंड। ही वाज बहुत ही um, हर एक बंदे से, कोई भी नया भी बंदा मतलब, बिकॉज दैट्स हाउ आई सी समबडी लाइक। जो मेरी जर्नी शुरू से रही है, मेरे को आप लाइक मेरे आगे $1,000,000 लेके आओगे, मेरे को वो चीज इंप्रेस नहीं करेगी। भाई जीरो से शुरू हुए हैं तो जीरो पे वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कोई बंदा आता है, कोई बंदा आके किसी को अच्छे से ट्रीट करता है ना, वो चीज हमेशा इंप्रेस करती है। और जिसके पास कोई रसूख हो, कोई जगह हो, वो किसी को अच्छे से ट्रीट करता है तो वो और भी ज्यादा इंप्रेस करती है ना। राइट। तो शुभदीप की ये चीज मुझे पहले से ही, पहले दिन से ही इम्प्रेस की। वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधे से, हर एक बंदे से अगर आप भी मिलते हो, वो सीधे से ऐसे कि जैसे कि पहले हम मिले हैं पता नहीं। और ये कोई कोई वैसे ही कोई तुरता फिरता बंदा ही है कि कोई कि है ना, कि कोई है ही नहीं कोई बंदे का कुछ। तो उसकी ये चीज मुझे पहले दिन से, और हमारी पहले दिन से ही एनर्जी ऐसे मैच हुई कि आई रिमेम्बर मेरे साथ गित्ता भाजी से, है ना, हमारे बड़े भाई हैं। हम 1 2 दिन हो गए इकट्ठे रहते हुए। मैं गित्ता भाजी को जाके कहता हूँ, मैं कहा यार कि मेरे मन में भी ऐसे था कि पता नहीं कैसा सा बंदा है ना, और और कि लोग भी इसको पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। मैं कहा यार बंदा हीरा है, मैंने ऐसे बोला लिटरली, मेरे वर्ड टू वर्ड, मैं कहा कि बंदा हीरा है ना। हाँ। तो गित्ता भाजी मुझे कहते, अभी 2 मिनट पहले वो मेरे पास आके गया, वो सेम चीज तेरे लिए बोल के गया। तुम आपस ओह में बैठ दैट्स के सो क्यूट। तुम वाह। आपस में बैठ के, नहीं नहीं, मैं कहता मैं बचोला रखा हूँ, आपस में तुम बैठ के बात कर लो कि मैं कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे फील हुआ तो मैं, आप बड़े हो, मैंने आपको बताया ना कि बंदा हीरा है यार, इसको मतलब, है ना। तो फिर हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं काफी, 2 3 दिन। एक दिन पहले जाना था उसने, एक दिन उसने एक्सटेंड की अपनी फ्लाइट। और वो क्लियरली मुझे उसने बताया कि भाई मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, हम यहाँ पे सही है, कि मुझे अच्छा लगा आगे, कि इसलिए मैं अपनी फ्लाइट एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो फिर वो 1 2 दिन बाद गया, इवन उसको सुबह 4 बजे मैं ड्रॉप करके आया एयरपोर्ट पे। तो उसका उसकी एक बहुत ही मेरे ख्याल से लाइक, उसको बहुत ही अलग तरीके से देखा गया, पर वो बंदा बहुत ही सही था। पर एक और जो बात है, कई बार क्या होता था, वो स्टैंड ले जाता था कोई चीज के लिए, कि जैसे होता है ना, वो हमारे में है, लाइक काइंडनेस, काइंडनेस है बहुत। ईशान, ये इसमें इसमें दूसरे बंदे का एटीट्यूड भी मायने रखता है। आप राइट। मेरे से आप करके बात कर रहे हो,
बहुत अच्छे सलीके से बात कर रहे हो, मैं आपसे भी 2 फुट नीचे होके आपसे बात करूंगा, राइट? जी। पर अगर आप मुझे कहेंगे कि तुम ये वो, या फिर कोई गंदे तरीके से, सलीका ही आपका आपका तरीका ही सही नहीं है मेरे से बात करने का, एक समय आएगा कि मैं कहूंगा यार भाई तू गलत चक्करों में पड़ा हुआ है, तुझे उठा के ले जाऊंगा मैं यहाँ से, तो पता नहीं लगने दूंगा। ये इस बात को समझो, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैसा सा हूँ, बराबर। अगर आप बार बार वो बटन पुश करी जाओगे तो या हम भी उस एटमोसफियर में, स्पेशली हम ग्रो अप हुए हैं कि भाई हमें बहुत अच्छे से रखा है, पर उन्होंने ये भी बताया कि जब कभी फिर वो पानी क्रॉस होता है ना, वो लिमिट क्रॉस होती है, तो खड़े हो जाओ। तो बिल्कुल। वो उसमें थी बात, वो उस चीज को मैंने एडमायर किया है कि बंदा, मुझे तो लगा था कि इसमें बहुत सी ईगो है, बहुत सा हंकार है या कुछ और है, कि इसमें तो वो बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली उस टाइम बोलता है जिस टाइम इसको तुम पुश करी जाते हो, क्यों तंग कर रहे हो यार उसको, करने दो अपना काम, एक नया जॉनरा, नई अपनी अलग फील लेके म्यूजिक लेके आया, सो लेट हिम डू हिज थिंग। या एंड आई थिंक अगर आप आपने जॉनर की बात की तो बीच में, खास करके इंडिया में मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ कि बीच में जब डिवाइन और ये सब चल रहे थे तो इट वाज ऑल अबाउट बम्बैया रैप। जो पंजाबी रैप का सीन था वो थोड़ा कम हो गया था, इट वाज ऑल अबाउट बॉम्बे हाँ, रैप with Divine coming in, हाँ। with Nazy coming in, with all these guys coming in. But then Sidhu brought it back, he brought the attention back to Punjabi rap, saying that, guys, knock knock, we're still here. या नहीं नहीं, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि एंड एंड ऑल्सो मुझे एक लगता था कि उसके उसकी जैसे हमारी इंटरेक्शन हुई ना, जैसे मैंने बताया कि जिस कंडीशन से, जैसी कंडीशन से मैं उठ के आया हूँ, तो उसको अगर आप कंप्लीटली कहो ना, कई बार क्या होता है कि आज से अगर 5 साल पहले आप मेरे से ये मैं बात बताता तो मुझे लगता था ओ सेल्फ मेड दिस एंड दैट, कि नहीं यार बहुत मेहनत की है। तो मुझे एक चीज थोड़ी थोड़ी इन द प्रोसेस महसूस हुई कि नो, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड सेल्फ मेड और कुछ भी, कि अगर तुम्हें, यू आर एक्चुअली चोजन वन, कि तुम्हें उस सिचुएशन से, देन यू लुक बैक टू द कंडीशन, कि उस सिचुएशन से यहाँ तक लेके आने में हर एक चीज, यस यू वर्क हार्ड, पर वो रास्ता जो तैयार हुआ है ना, वो कोई सिर्फ वर्क हार्ड से नहीं हुआ, उसमें भी कुछ ना कुछ Right. कोई ऐसी सी चीज होती है कि जो तुम्हें पकड़ के, कि तुम्हारा रास्ता तैयार करवा के तुम्हें उस, वो बात मैंने सिद्धू में भी देखी थी, शुभदीप में, कि शुभदीप उस चीज को मानता भी था। कहता है यार लाइक, उसने उसने जैसे उसकी वर्डिंग थी ना, कहता है यार हम एलए बैठे थे ना होटल में, पूल में, वो बंदा देख ले जैसे घर पे बैठे हुए जूड़ा किया हुआ है, ऐसे मोढे पे उसने अपने शोल्डर पे परना रखा हुआ है, जो सिर पे हाँ। साफा बंधा होता है। मैं वो ऐसे बैठा हुआ इधर बैठा, मेरे पास अभी भी पिक्चर्स है, उसने मेरे पास मेरी फोटो कह रहा भाई आप पोज दे मैं फोटो खींचता हूँ ना, ऐसे बैठे यार, कह रहा यार साला कभी सोचा नहीं था यार कि यार ये क्या दुनियादारी देख रहे हैं ना, कि बैठे हैं ये आले दुआले चार गोरे, इधर बैठे हैं आले दुआले पूल में, ये सारी, हमें तो स्विमिंग भी नहीं करनी आती, तो भी पूल में बैठे हैं। भाई तुझे आती है स्विमिंग करनी? मगर ना भाई, पिंडों पिंडों में करना नहीं, मैं कहना कि सीख तो जाता ऐसी सी मतलब बातें कर रहे हैं यार, लाइक वो उसको वो एहसास करवाता था वो बार बार कि यार नहीं यार, ये तो बहुत ही ज्यादा दे दिया मुझे, कि मैं इतने लायक नहीं था। सो उसमें एक ये बात थी उसको एक्चुअली, कि भगवान कह लो या कुछ भी, जो भी चीज आपको जिस भी चीज को आप मानते हो, उसको इस चीज की वैल्यू थी कि मेरी इतनी औकात नहीं थी जो मुझे दिया है। और ये जो जॉनरा, ये जो सारा ताम झाम इसने सेट किया है, कि ऑल ऑफ सडन आता है और ऐसे लाइक इंस्टेंट, लाइक इन ईयर्स, कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, कि लाइक ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं आया हूँ और मैंने मेहनत की, नो, लाइक बहुत लोग मेहनत कर, उसको इस चीज का एहसास था। और ये जब मैंने फील किया तो मुझे मेरे मन में उसके लिए और रिस्पेक्ट हुई। राइट। तो मेरे राइट। ख्याल से यही एक रीजन था कि वो हर एक बंदे को बहुत अच्छे से ट्रीट करने में बिलीव करता था। आई थिंक, और ये जो है वो खास, लोगों को खास जो बनाती है बात, वो यही होती है ह्यूमिलिटी। आप जितने भी राइट, ग्रेट्स देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर से लेकर आप फुटबॉल तक देख लीजिए, लायनल मेसी तक, ये इनमें ह्यूमिलिटी है और ये ह्यूमिलिटी सक्सेस तक लेके गई है इनको। टैलेंट इज राइट। सेकेंडरी, बट द ह्यूमिलिटी इज ऑलवेज फर्स्ट। नो, 100%, 100%। एंड अगर आप देखो भी, एक प्रॉब्लम होती है ईशान की, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो बहुत ही नीचे से उठ के, या फिर जिनको कुछ मिल जाता है, या फिर वो अपना कह लो कि हार्ड वर्क करके ऊपर जाते हैं, लॉट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर अप देयर, आई हैव सीन इट,
million. I see that 9 out of 10 guys, when they are nothing, when you I know people who, I had the, I was blessed to help them grow, बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल at the bottom. But when they are up there, they are not the same person. They don't, वो किसी की हेल्प नहीं कर सकते, वो किसी को, जबकि they are in power to help others. You are blessed to, कि उस पावर में आप आए हो, but then they don't do it. उनका behavior change हो जाता है, उनका सब कुछ change हो जाता है. But then you see guys like these, they are the people who actually, कि जिनको होता है कि इनको भगवान और दे, like मेरी तरफ से ऐसे होता है कि इनको और दे, because they are the people who are actually, जो नीचे बैठे हैं उनकी बाजू पकड़ के ऊपर लेके आने वाले हैं. So Right. they deserve a lot more than what they have today. So Sidhu was one of those guys too, man. Like, Whew, it was quite a ride actually. Speaking of him, and I'm just thinking the image is coming right in front of my eyes, and it's really, matlab, you have shared a side of Sidhu, and you explained it such beautifully. I think everyone is going to enjoy listening this particular part, because you know you must be seeing अभी भी कितना उनको प्यार मिलता है yeah. ना. एंड वो प्यार रिस्पेक्ट के साथ है. एक चीज होती है इंडिया में जो आपको प्यार मिलता है, पर वो रिस्पेक्ट जो भी मिलता है वो डर की वजह से मिलता है, और एक होता Hmm. है सच में आपको लोग चाहते हैं. तो ये जो Right. सेकंड चाहना है, वो चाहना काफी हद तक मैं कहूंगा कि ये लोग सुन के बहुत खुश होंगे. बट क्वाइट Yeah. अ इमोशनल यू नो जर्नी फॉर मी एंड यू जो हमने बात की है. कमिंग बैक टू रेसलिंग नाउ, आई नीड अ मिनट नाउ. बहुत ही अप क्लोज एंड पर्सनल वाला, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं Yeah. जैसे मेरे कोई फैमिली वाला बता रहा है मेरे पुराने कोई दादाजी के बारे में, या कोई जिनको मैं नहीं शायद मिल Right. पाया. Right. तो And that's the beauty of it. Like, जो अच्छे किरदार और अच्छे दिल वाले इंसान होते हैं, उनकी बात करते हुए ऐसे ही फील होता है. Whenever I talk about him, that's how the thing is कि हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इवन पर्सनल नोट्स पे भी, लाइक पर्सनल मीटिंग्स पे भी, कि बहुत जजमेंटल हो जाते हैं बहुत ज्यादा. तो सोसाइटी जो, जैसे अब उसको बहुत ही कम जानती थी. अब जैसे बराबर. फॉर एग्जांपल, आप पर्सनली उसको नहीं जानते होंगे. आपका, जी. अगर आप दो, मैं बहुत लोगों के ये बात पहले हुई, अगर आप 2 दिन भी उसके साथ या एक दिन भी उसके साथ रह जाते, आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है. तो यार ये बंदा तो वो है ही नहीं जो हम साला गानों में ऐसे देखते हैं, ये वो. द थिंग इज, उस चीज पे जजमेंटल बहुत हो जाते हैं. तो उसको अगर थोड़ा सा भी उसकी एनर्जी को, अब जैसे आप मिले भी नहीं हो पर आप उसकी एनर्जी से इतने कनेक्टेड हो, एग्जैक्टली. राइट, कि आप इमोशनली भी कनेक्टेड हो, है ना. या तो आप उसकी एनर्जी से नहीं कनेक्टेड हो जब वो वैसी सी जजमेंट पास होती है, या फिर वो आप उसको पर्सनली नहीं जानते. अगर आप इन दोनों चीजों में नहीं इन्वॉल्व हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि ना जज करो इतनी इजी, है ना, कि पर्सनल बराबर. जाके या अपने अपने जो आपके विचार हैं उन विचारों के हिसाब से जज करना, नहीं, आप नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं कर सकते. बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मिलते हैं आपके, वो कहते हैं यार कि जब रेसलिंग में देखते हैं तो ऐसे लगता है कि तेरे से बात ही नहीं करनी, है हम्म. ना. जैसे अब जैसे पर्सनली मिलो आप, ऐसे लगता है कि यार तू बंदा ही और है कोई. सो ऐसे ही होता है कि इट्स जस्ट दिस बिजनेस, एंटरटेनमेंट बिजनेस लगा लो या ये लो, इनमें बहुत ही, आपको पता ही नहीं होता कि हीरो के पीछे विलन है या विलन विलन के पीछे हीरो है या क्या है. सो बेटर बराबर. नॉट टू जज. वो एक बात है. और आपने जो थोड़े टाइम पहले बात कही कि कुछ लोग ऊपर जाने के बाद काफी बदल जाते हैं, मुझे इस पे ड्रू मैकेंटायर ने एक बात कही थी जो मुझे याद आ रही है, कि बी नाइस टू पीपल ऑन योर वे अप, बिकॉज दे विल बी द सेम वंस ऑन योर वे डाउन. राइट, राइट, राइट. I think this is that a key takeaway that all of us should take in, and I think the current generation understands things more, deeply. Human angle से सोचते हैं, जो काफी अच्छी चीज है. राइट. तो जैसे मैं बात कर रहा था, अब हम रेसलिंग की ओर आ रहे हैं, और काफी बातें कर ली है मैंने. मुझे पता है कि टाइम हमने पहले कुछ इतना और इतना सोचा टाइम था. वेट करवाया मैंने तो बनती है.
चलो मैं अच्छी नहीं, बात है। वैसे एक्चुअली आई शुडंट से दैट, मैं नहीं वेट करवाता कैसे, किसी सिचुएशन ही ऐसे लाइक कि ये वो नहीं, आई अभी भी आपको पता अंडरस्टैंड। है कि कैसे हमें हैड टू लाइक कि ओके, मैं कहा कि नहीं अब तो करना बनता है। राइट राइट, नहीं एंड मुझे पता है ना कि आप ऑन द रोड हैं, हमें हमें तो क्या पता है, मतलब वी सी यू वंस और ट्वाइस अ वीक ऑन टेलीविजन ऑन यूट्यूब, बट बिहाइंड द सीन्स यू गाइस हैव सच अ ग्रोलिंग स्केड्यूल, नो? तो राइट आई राइट, अंडरस्टैंड कि इट्स अ पेशेंस गेम, करो करो, मिलेगा, सबर या का फल या मीठा होता या, है। तो आई राइट आई राइट, नेवर लॉस्ट होप, आई न्यू कि यू विल, बिकॉज योर रिस्पॉन्स एवरी टाइम टू मी, आई न्यू कि हाँ इनको भी करना है, इनको भी वो हम्म। चाह है करने के लिए, बट नहीं हो रहा है अभी, 2 और 2 4 नहीं हो रहे, बट वही हमारा तो अल्टीमेटली हो गए। ऐसे है कि चलो, हाँ नहीं हमारा ऐसे है कि मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरा बस चले तो हर एक बंदे को रिप्लाई करूं, हर एक बंदे की हेल्प करूं, पर वो यू अंडरस्टैंड कि वो बड़ा मुश्किल होता है ना। पर जी, हमारा ऐसे था कि हमारा एटलीस्ट वी वर इन टच द होल टाइम, कि हमारी बातचीत होती रही है कि हाँ। हमने कई लोगों के बारे में बात की एईडब्ल्यू में, पर हमने अभी तक वी हैवंट एड्रेस्ड द एलिफेंट इन द रूम, एंड दैट इज वी हैवंट टॉक्ड अबाउट टोनी खान। तो बिफोर यू आंसर भाई एनीथिंग, साहब। आप क्या सोचते हैं टोनी खान के बारे में, ये तो मुझे जानना ही है, पर बिफोर यू आंसर एनीथिंग, हाँ, मुझे मतलब इस चीज के लिए आई वांट टू गिव प्रॉप्स टू टीके, दैट द पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन कैरेक्टर्स इज नॉट स्टीरियोटिपिकल, एंड which is राइट really nice and refreshing to see, you know, जैसे your character is not a stereotypical character, as I राइट mentioned before. Matt Hardy came to you, please come to me. You know, then Satnam Singh, he's currently paired with Sanjay Dutt and Jay Lethal, like the black राइट, machismo. Oh, yeah, I like Jay हाँ Lethal या so या। much, and seeing Satnam Singh with him बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको क्या लगता है कि वो एशियन है, एक तरीके से इंडियन ही है, वो समझते हैं हमको ज्यादा? I think TK had that for sure in their in his mind कि जो Indian characters हैं या फिर कोई भी foreign characters है, हम्म। वो हमेशा like stereotypical वैसा सा अपना पहरावा या फिर वैसा से ही उनके कैरेक्टर जो उनके उनके जो बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उस चीज से बहुत परे था वो पहले से। ठीक है, वो बहुत बहुत वो पहले मुझे भी कभी इस चीज की जो मैं कर रहा हूँ वो खुद लिटरली जो मुझे आज तक नहीं कुछ बोला गया कि कैसे क्या या नहीं। आई वांट मैं कहा कि क्योंकि बिकॉज वी हमें इस चीज को हमें महसूस करते हैं, हम एज अ फैन रहे हैं तो हमें हम इस चीज को महसूस करते हैं कि भाई जब हम देखते थे, हम वी वर फैन ऑफ दीज गाइस जो रॉक एंड ऑल जॉन सीनास एंड ऑल दीज गाइस, तो इनको ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती थी, लाइक दे वर राइट एक्चुअली अ जेन्युइन गुड रेसलर्स, कि गुड फिजिक या फिर कुछ भी लाइक अच्छी पर्सनालिटी, दिस इज तो ऑल ऑफ सडन जब वो स्टीरियोटिपिकल स्टफ लेके आते हैं तो वो हमें एज अ फैन भी ग्रोइंग अप लाइक वो हमें इतनी प्रभावित नहीं करती थी। आज की डेट में भी लाइक ऐसे लगता है कि यार या तो तुम बड़े ही सही तरीके से दिखाओ या फिर ना ही दिखाओ, है ना। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। the TK was clearly in this key mindset ki you don't have to do the stereotypical thing, actually that's that's stupid. Like you show कि कोई भी बंदा बाहर से आता वो clearly a villain, a heel, like no. So I'm thankful because in my case, I understood being a growing up as a fan in India, so I understood what audience want from wrestling from us, so I wanted to be that, and he would let me do that. So that's I'm very thankful about that. थैंक यू टीके फॉर दैट, आई थिंक इंडियन फैंस आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस रीजन। अभी तो बस शुरुआत है, और 2021 में हमने सुना कि कैसे वो एईडब्ल्यू का मौका आया, 2022 में हमने देखा कि ये जो कैरेक्टर था वो कैसे ब्लॉसम हुआ, और अब 2023 में हम क्या देखेंगे? डू यू हैव अ गोल रेजोल्यूशन सेट? मैं तो बहुत कुछ सेट करके बैठा हुआ ना, बट ये होता है कि कंपनी का तुम्हारे लिए अभी क्या प्लान है ना, तो राइट। मैं उस चीज की वेट कर रहा हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारा स्टोरी लाइन, तुम्हारी आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लान है, बिजनेस प्लान, उस हिसाब से तुम चलते हो। बाकी मेरी तरफ से जितना मैं कर रहा था मैं उससे ज्यादा और ट्रेन कर रहा हूँ, जब जरूरत होती है, जब जैसा सा चाहिए उनको, हम रेडी फॉर इट। तो और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंडीज भी कर रहा हूँ अभी साथ साथ, थोड़ा हाँ और इंडीज करने की कर ही जा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि
बिल्कुल यहीं तक ही रखा हुआ है अपने आप को सीमित। सो इंडीज भी करी जा रहा हूँ ताकि वो मुझे रैप मिलते रहें, ताकि जब उनको जरूरत हो तो आई एम कि मैं बिल्कुल रेडी टू गो गो है कि ऑलराइट अब ये प्लान है, इसको आगे लेके जाना है और लग जाओ इस पे। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि उन पे कि कैसे उनका एग्जैक्टली क्या प्लान है, क्योंकि मैं तो उनका बंदा हूँ, जैसे उन्होंने जो भी करवाना है तो वी आर रेडी टू रोल लाइक यू नो। तो या लेट्स सी क्या होता Absolutely, we are pretty much excited, and we है। hope that 2023 is the year that you get the very big break that all of us want here. And I think in AEW there is a lot of room for you. Why I say this is because with the variety of characters that you have out there, with somebody like you will stand out even with other Indians on the roster. Satnam and Sanjay Dutt are doing their thing, but Jora Johl is standing out. So I think that is something that will propel forward. And एक और चीज मैं अभी कंक्लूड करते करते कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत थैंक यू। मैट हार्डी के बाद आप दूसरे मेरे AEW सुपरस्टार है जिससे मेरी बात हो रही है, तो इट वाज वेरी वेरी नाइस मोमेंट फॉर मी। आई थिंक ऑल द फैंस, ऑल द देसी फैंस इन इंडिया नहीं विल नहीं, बी थैंक यू आपका यार। मुझे मुझे लिटरली ये हर बार होता है रेसलर्स के साथ, थोड़ा मैं पैनिक करने लगता हूँ। पर ये सबसे मेरा चिल वाला ये था, मतलब ऐसा लगा कि मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ। एंड एट दिस द इज एंड द ऑफ द डे हमने हिंदी में भी बात की है, तो वेरी नाइस यार, मतलब बहुत अच्छा दैट्स द लगा। होल पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट कि मेरा भी यही होता है कि अगर कहीं भी किसी से भी बात करूं तो ऐसे फील हो कि फॉर वन मोमेंट, मतलब पूरे इंटरव्यू में भी अब मेरा यही पर्पस था कि किसी भी टाइम आपको ऐसे ना लगे कि कोई रेसलर है या कोई कुछ और कुछ है। मुझे ऐसे हो कि यार अपने ही बंदा तुरता फिरता है कि ठीक है भाई, बात कर रहे हैं बस, दैट्स इट। सो उसमें बातें भी अच्छी आती हैं कुछ ना कुछ राइट। किसी को। अब जैसे जर्नी की बात करी है, मेरा होल पर्पस, अब मेरा आज की डेट में अगर गोल पूछो तो सबसे बड़ा गोल यही है, टू इंस्पायर आवर किड्स। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो अभी भी वही अनफेवरेबल कंडीशंस में है। व्हेन आई लुक एट देम आई सी माई सेल्फ लाइक क्लियरली। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, becoming a champion, doing all that stuff, ठीक है, that's part of the business, and that's it for me. Nothing more than that. My bigger goal is to help those guys. I want all of those guys कि जिनको ये एहसास भी नहीं है या फिर वो एक सपना लेने का भी की भी हिम्मत नहीं रखते, कि मेरा कंप्लीट गोल ही ये है कि किसी तरीके से कि मैं उनसे बात करूं या एक्सपोज हूं, या फिर मेरी जो जर्नी है या फिर जो मैं कर रहा हूँ उन चीजों, वो सारी चीजें उनको देखें और वो कहें कि ओके यार, ये भाई भी कोई हमारे जैसा ही बेचारा एक एवरेज बंदा, और सब कुछ इसमें कुछ ऐसी सी बात नहीं थी पर इसने करके दिखाया, तो वही हम भी कर सकते हैं, है ना। सो यही मेन गोल है। और उसके लिए एक बहुत जो जरूरी बात जो मुझे समझ आई है, उसके लिए हर बंदे को ये बात एहसास करानी बहुत जरूरी है दूसरे को कि सब नॉर्मल ही है। अब जैसे मेरा होल पर्पस, जैसे मैंने बताया कि मेरा पर्पस आपसे ये था बात करके कि आपको एहसास कराऊं कि बहुत नॉर्मल ही हूं मैं, कि यस। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। सो जब तक आपको ये चीज एहसास नहीं होगी तब तक आपको मैं हेल्प करने के काबिल भी नहीं होऊंगा। बराबर। जिस दिन आपको ये होगा ना कि यार ये तो अपना ही भाई है, तो आप उसके फुटस्टेप्स पे चलने के लाइक इजी हो जाएगा आपके लिए, इट्स जस्ट, सो दैट्स हाउ आई फील कि राइट। एंड आई एग्री टू दिस बिकॉज इट्स आइदर, दो चीजों से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। इट्स आइदर लार्जर देन लाइफ लाइक शाहरुख खान और सलमान खान, राइट और इट इज वन ऑफ देम, उनके जैसा एक राइट रॉ लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राइट सो वैसी वाली बात है। इन बिटवीन नहीं चलता। यू आइदर हैव टू बी वन ऑफ देम और यू हैव टू बी रियली लार्जर देन लाइफ लाइक द रॉक और समबडी। राइट राइट राइट। And I think that's what made it special. But I am the lucky one here. Thank you so much. आपने नहीं नहीं, मुझे time दिया। And AEW, we want to see you on Dynamite, and we want to see you with the gold. Now, as you said, all depends. Plans are subject to change, but you never राइट, know what happens. Never say never in professional wrestling. नेवर। Okay, राइट so that राइट। was Ishan Wrestling, that was Jora Johl. आज के लिए बस इतना ही, बट हम जरूर वापस आएंगे इनके साथ और भी बातें करने के लिए। एंड हु नोस, अगली बार जब ये आए तब ये चैंपियन हो।
देखते see हैं you guys. Bye bye. Please like, share, subscribe, and keep watching Ishan Wrestling.